Namaskar, Adab, and welcome to the 12th episode of Weekly Takes from Jagjit from New York. To tell you all the least, I am overwhelmed by your love and support to your program, The Weekly Takes. Earlier, we made a few changes in the formatting of Weekly Takes by creating 3 short videos, but many of you called me to let me know that the earlier format was better. Even my other half felt so, and hence we go back to the earlier version of Weekly Takes with some minor modifications. In this episode, we start by talking about news of USA with a special focus on elections 2020. A little known fact about New York City, news of India, wherein we will talk about the important current events, history of Bihar, and the role of the opposition, wherein we will talk specifically about the future of the Congress party. As per Hindu religion, today is Ganesh Chaturthi, the birthday of Lord Ganesha, the god of new beginnings and a fresh start. Happy Ganesh Chaturthi to you all and blessings from the Lord. Let us begin. News of USA. It is now only 73 days to the 2020 elections. Rhetoric is heating up from both sides. But if you sit on the side and listen to the leaders talk, you realize that you are made to hear the same statements every 4 years. Listen to it. This is the most important election of our lifetime. Never in the history has the country had such candidates, not to examine what they did all their life. Democracy is at stake. And then the elections happen, we vote, someone is elected, and the country moves on as usual. Yes, these are different times. The meetings and conventions are all to be virtual. The Democratic Party had its convention. Leaders from all shades spoke from the confines of their homes. Everyone talked about the threat to democracy, crucial time in the history of America, how racially divided we are, and the prestige of the country going down. Just like in 2016, and in 2012, and in 2008, etc. Don't you think so? I do believe we are all on the same page. It is said that the country is divided like never before, but who did it? And how did it happen? Who is responsible? If we seek votes in the name of Muslim Americans, Christian Americans, Italian Americans, Indian Americans, African Americans, are we not dividing the country more? What do you think? I do believe that America is racially divided and that BLM is the right thing at the right time. But I am reminded of earlier campaigns, not in our name, Me Too, which started with great earnest but fizzled out after some time. Reason being, it was never for a cause or social change, but for a different motive. I hope BLM sustains and brings about changes in our society. I do hope that the fervor of the movement does not diminish after November. In election news, Joe Biden picked up Kamala Harris as his vice presidential running mate. Both the candidates gave beautiful acceptance speeches. South Asians are euphoric that a Tamil Brahmin has made history by becoming the vice presidential candidate. But the Indian community is greatly divided. The first question raised is as to why she was given the ticket. Point to ponder here. There are nearly 1.8 million eligible Indian American voters in the United States, and they are present in sufficiently large numbers in at least 6 swing states: Michigan, Pennsylvania, Florida, Texas, Georgia, and North Carolina. In all probability, the ticket to Harris was weighed against all these considerations. Otherwise, a candidate who secured less than 2% vote in the presidential debate is not likely to get the nomination. On the other hand, you have Trump, who had a very big rally with Prime Minister Modi in Houston. So her nomination is primarily to divide, I use the word divide, the votes of the Indian diaspora. Well, in elections, everything is okay. Among the larger Indian community, a general approach was to be governed by 3 factors. Number 1,
what is good for USA as we live here now. Number 2, what or who is good for India. All said and done, we will always be known as Indian Americans. Number 3, who is more supportive and understanding of our cultural ethos and does not follow the appeasement policy. What do you think? Share your thoughts. Look for answers. Which party gave India the nuclear deal? Which party helped India during the 62 war with China or the 71 war with Pakistan? Which party is supporting the policies of a democratically elected Indian government? Answers to these are important for you to make a decision. And so much for the election talk. I ask you again the same question I asked you in the last 2 episodes. What happens to our stimulus checks? We had discussed about in the earlier episodes wherein I had posed a question to you. Do these politicians ever think about putting food on our table? Or to put it simply, do they ever think about us? The answer is simple. Yes, they do think about us, but only when the elections come near and they need our votes. This is a reality which we must embrace. The truth is that lawmakers have left for their summer break. But when the question arose for food on their own table in the name of postal ballots, they are agreeing to come back for a special session. So before casting your votes, think also about where you stand on their priority list. An update here. More than a dozen states have been approved to pay unemployed workers $300 a week, authorized by President Trump. But New York hasn't even asked for the cash, according to a website that tracks the applications. So much for politics and our leaders thinking about the plight of the people. Governor Andrew Cuomo opposed Trump's plan as laughable and impossible when it was first announced. Think about all this. Now, moving over to some interesting facts about New York City. About 1 in every 38 people living in the United States resides in New York City. The Jewish population in New York City is the largest in the world outside of Israel. The Chinese population in New York City is the largest in the world outside of Asia. On November 28, 2012, not a single murder, shooting, stabbing, or other incidents of violence, crime in New York City was reported for an entire day, the first time basically ever. UPS, FedEx, and other commercial delivery companies receive up to 7,000 parking tickets a day, contributing up to $120 million in revenue for the New York City. 60% of cigarettes sold in New York City are illegally smuggled from other states. How many of these did you know? If you have some more interesting facts up your sleeve, let me know. Write in the comment box. अब चले भारत की ओर। सबसे पहले एक अपडेट। पिछले एपिसोड्स में मैंने चर्चा किया था सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का, और हाँ, यहाँ जिक्र जरूरी है आप समों के सामूहिक आवाज का, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के मामले का संज्ञान सीबीआई ने लिया और जांच शुरू हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसने ये फैसला दिया कि जांच सीबीआई ही करेगी। सीबीआई मुंबई पहुंच चुकी है और अब आम जनता को महसूस हो रहा है कि सुशांत को न्याय मिल सकेगा। अब हमें इंतजार करना चाहिए जांच और उसके रिपोर्ट का। लेकिन इस सारे प्रकरण ने एक नया ज्ञान हमें दिया है। सदी के महानायक किंग खान, भाई, आमिर, अक्षय, ये सारे के सारे बड़े नाम खोखले हैं। इनसे डरपोक तो पूरे भारत में कोई नहीं है। अगर आप अपने ही इंडस्ट्री के किसी शख्स, चाहे वो बड़ा सितारा हो या न हो, के लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं तो जनता आपको भी पहचानना छोड़ देगी। इन सबों का सामूहिक बहिष्कार होना जरूरी है। आज के तारीख में अगर बॉलीवुड में कोई शेर है तो वह मणिकर्णिका है। सैल्यूट टू कंगना एंड द फियरलेस रिपोर्टिंग ऑफ रिपब्लिक चैनल। एक अलग समाचार में चीन को मद्देनजर रखते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की निर्माण की निविदा टेंडर रद्द कर दी गई है। चीन को एक और झटके में 1 सितंबर से गुणवत्ता जांच के बाद ही भारत में आयातित खिलौने की एंट्री मिलेगी।
और अब बात बिहार के इतिहास की। 1968 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे। वह अल्पमत की सहायता से सरकार चलाने में विफल रहे। संयुक्त विधायक दल ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की मांग की, जो फरवरी 26, 1969 तक लागू रही। इसी दौरान चुनाव हुए और किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। इसके फलस्वरूप कांग्रेस की स्थिति बिगड़ गई। विधानसभा में इस बार उनकी संख्या मात्र 118 सीट की थी। येन केन प्रकारेण हरिहर सिंह मुख्यमंत्री बने और सरकार का गठन हुआ। केंद्र में कांग्रेस की हालत और गंभीर थी। इंदिरा गांधी पर अनुशासनहीनता का आरोप सिद्ध हुआ था और उनकी अलोकतांत्रिक नीतियों का विरोध करते हुए कामराज और मोरारजी देसाई की अगुवाई में कांग्रेस ओ का गठन हुआ। यह कांग्रेस के पुराने नेताओं की सैद्धांतिक लड़ाई थी। इधर बिहार में जो हरिहर सिंह की सरकार अल्पमत में थी, वह गिर गई और कांग्रेस ओ की तरफ से भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर 10 महीने के लिए दरोगा राय मुख्यमंत्री बने। बार बार पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री बनने से उनका आत्मविश्वास मजबूत हो रहा था और उनमें राजनैतिक जागरूकता आ रही थी। उस समय भारत एक बुरे दौर से गुजर रहा था। पूरा देश भूखमरी, अकाल और बेरोजगारी से बेहाल था। इसी बीच 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। यह युद्ध बांग्लादेश में पाकिस्तान से आज़ादी के लिए हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें कराची, रावलपिंडी और लाहौर जैसे शहर थे, और पूर्वी पाकिस्तान, जिसमें ढाका, रंगपुर, मिदनापुर, खुलना जैसे शहर का और सुंदरवन का विस्तृत इलाका था। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को सिर्फ एक अपना उपनिवेश समझता था, हिस्सा नहीं। बंगाली मुसलमानों से भेदभाव, सैनिक शासन, नागरिकों के मूल अधिकारों का खुला शोषण, गुलामों सरीखा व्यवहार अपनी चरम सीमा पर था। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जनता लोकतंत्र के लिए संघर्षरत थी। भारत ने इस लड़ाई को खुला समर्थन दिया। भारतीय फौज ने मुक्ति वाहिनी के रूप में इस लड़ाई में बांग्लादेश का साथ दिया। 18 दिन के संघर्ष के बाद पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। दुनिया ने एक नए देश बांग्लादेश को जन्म लेते देखा। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी एक सशक्त, निडर और चतुर राजनेता के रूप में उभरी। इस विषय ने पिछले सभी करवाहटों को भुला दिया और विरोधियों को भी उनमें काली और दुर्गा नजर आने लगी। इधर बिहार में जिन नीतियों की खातिर विपक्ष एकजुट हुआ था, उसका आधार खिसकता जा रहा था। निजी स्वार्थ, पद लालसा और महत्वाकांक्षाओं के बीच जनहित कहीं बहुत पीछे छूट गया था। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आ गई थी, पर बिहार में चूंकि सरकारें जल्दी जल्दी बन रही थीं और बिगड़ रही थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी में जो पिछड़ी जाति के नेता थे, वो अपना प्रभुत्व जमाने की चाह में प्रबल रूप से राह खोज रहे थे। यह जो जात पात की सियासत थी, वह राजनीति में रक्त की तरह घुल गई थी। इसलिए बिहार में अब कांग्रेस के विरोध के स्वर मुखर हो रहे थे। अस्थिरता का ऐसा माहौल था कि 5 साल में 9 बार सरकारें बनी और गिरी। इस सरकार के उथल पुथल में जातिगत भावनात्मक आधार अधिक और नीतिगत आधार कम था। चुनाव भावना से जीते जा सकते हैं, पर सरकारें भावनाओं के आधार पर नहीं चलती। अब बिहार कष्ट से त्राहिमाम कर रहा था। बिहार ने अब तक सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन देखा था, पर अब सारे भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाली एक नई क्रांति का पदार्पण हो रहा था, और वह थी छात्र क्रांति। छात्र पहले से भी बेरोजगारी, भुखमरी और शिक्षा में भ्रष्टाचार से पीड़ित थे। उसी समय भागलपुर में केबी सहाय के किसी कृपा पात्र के फेल होने पर भी ग्रेस नंबर देकर पास कराया गया। छात्र इससे बेकाबू हो गए और आंदोलन भड़क उठा। पुलिस का दमन तेज होकर विद्यार्थियों को कुचलने लगा। इसी समय जयप्रकाश नारायण क्षितिज पर आए, एक ऐसा समाजवादी, सर्वोदयी, गांधी अनुयायी जिसने आज तक किसी भी पद का दुरुपयोग नहीं किया था। वे अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के 3 बड़े आंदोलनों में भाग लिया था: स्वतंत्रता आंदोलन, भूदान आंदोलन और छात्र आंदोलन। चलिए थोड़ा जानते हैं इस नेता के बारे में। बिहार के एक छोटे से गांव सिताब दियारा, जो सारण जिले का गांव है, उसमें इनका जन्म। 9 वर्ष की आयु में यह गांव छोड़कर पटना चले गए थे पढ़ने के लिए। वहां इन्होंने पटना कॉलेजिएट में दाखिला लिया था।
पर मौलाना आज़ाद के भाषणों से प्रभावित होकर उन्होंने बिहार विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1920 में वह अमेरिका गए और 1923 में वहां से स्नातक किया। वह और भी आगे पढ़ना चाहते थे, पर माता की तबीयत खराब होने की वजह से 1929 में उन्हें लौटना पड़ा। उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। उसमें यह शामिल हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में यह बार बार जेल गए और 1942 में यह हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल चले गए, जहां से आजाद दस्ता के नाम से एक विद्रोही सैन्य शक्ति का संगठन भी किया। बार बार इन्हें विभिन्न जेलों में रखा गया। 1947 में जब गांधी जी की अंग्रेजों के साथ वार्ता होने वाली थी, तब गांधी जी ने यह शर्त रखी कि जब तक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक वार्ता नहीं होगी। इनकी रिहाई हुई और गांधी जी ने वार्ता शुरू की। गांधी जी इन्हें नेहरू के विकल्प के रूप में देखते थे। आजादी के बाद वह 1 दशक तक राजनीति में सक्रिय रहे, पर जब राजनीति में जातिवाद का जहर घुस गया और राजनीति जहरीली हो गई, तब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, क्योंकि कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका था। तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह लोक सेवा में ही जुटे रहे। यही वह जयप्रकाश थे जिन्होंने चंबल के दुर्दांत डाकुओं से आत्मसमर्पण करवाया था, जो पूरे भारत में विनोबा जी के साथ भूमिहीनों की आवाज बने थे। यही वह जयप्रकाश थे जिन्होंने नागालैंड में विद्रोही कबीलों से सरकार की शांति वार्ता में मध्यस्थता की थी। वही महान नेता अब युवाओं का नेतृत्व करने चला था। आज के एपिसोड में बिहार के इतिहास से इतना ही। अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे बिहार के छात्र आंदोलन की, जिससे निकले लालू यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी जैसे बिहार के नेता। अब चलिए चर्चा करते हैं भारत की राजनीति की। कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वह दिखता नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कांग्रेस पार्टी को। आजकल चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। ज्ञात रहे कि 2019 के चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सराहनीय कदम। सोनिया जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। साल पूरा होने पर चाटुकार कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाना शुरू कर दिया। पिंकी ने भी बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो, यानी हालात की मजबूरी को समझते हुए नेतृत्व छोड़ने की बात चल रही है। लेकिन पार्टी पर पकड़ कायम रखने के लिए किसी लॉयलिस्ट को ही कमान थमाई जाएगी। अगले सप्ताह पार्टी की कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक कुछ नामों पर चर्चा होगी। मेरी जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र से 2 नाम हैं, लॉयलिस्ट सुशील कुमार शिंदे और मुकुल वासनिक। शिंदे जी is a senior leader who is considered close to 10 Janpath. Mukul Vasnik is a young leader who has risen from the ranks and led its student and youth wings. There is another formula being thought of: Ashok Gehlot to become the Congress president and Sachin Pilot leading Rajasthan. Another name doing rounds is Shashi Tharoor. Shashi is a good person who is well read and intelligent, but he does not command a popular following among the masses of the cowbelt, which is necessary. Moreover, is he a loyalist? The basic criteria pointed out by loyalty to 10 Janpath is also to be a fluent speaker in both English and Hindi. And yes, it does happen. And if a change does happen in the AICC or in the Congress party, my humble submission is change must be made of the present setup. All these people who are the general secretaries and office bearers of the Congress party have been tried and tested for long and they have given no results. New face is important. New faces must be brought in. Chances must be taken with that. And yes, Congress, the survival of Congress depends on it. इधर एक सवाल जिसे भारत का युवा वर्ग उठा रहा है, आर्थिक आधार पर आरक्षण का। सभी पार्टियों को सोचना होगा इसके बारे में। आजादी के 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पुनर्विचार जरूरी है। कई सामाजिक संगठन जैसे कि उत्तर प्रदेश की ब्रह्म सेना जोरदार तरीके से उठा रहे हैं।
कांग्रेस को भी इन चीजों को समझना होगा और इन चीजों को समझते हुए अपने आगे का कदम तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वापस आना है तो कुछ नए मुद्दे होने चाहिए, कुछ अच्छे मुद्दे होने चाहिए, हिंदुस्तान के फायदे के मुद्दे होने चाहिए, युवा वर्ग के उत्साहवर्धन के मुद्दे होने चाहिए। वही घिसी पिटी चीजें अब काम नहीं देंगी। लेकिन क्या जो दिख रहा है वो होने वाला है, और या ये सिर्फ गप है, दिल बहलाने और कार्यकर्ताओं को अपने पीछे रैली कराने की कोशिश है? हाँ, यहां एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी उसी दिन से कमजोर होनी शुरू हो गई जब से उसने विंसेंट जॉर्ज को अलग किया है। पार्टी में अभी भी जान आ सकती है अगर जॉर्ज को सामने लाया जाए, क्योंकि हर किसी की रग उस आदमी के पास है।